Yeah, good evening, everyone. In this session of next chapter for JEE preparation. So let me show you the chapter which we are going to discuss today. Okay. So this is basically the chapter complex numbers and quadratic equations for JEE Mains. And it is a very important chapter. Complex numbers is also a lengthy and important chapter. Quadratic equations is also not so lengthy but important chapter. So we'll discuss some of the questions from these two sections, and we'll try to understand what is the theory behind those questions, and then we'll solve those questions. And in between, we will also discuss about the resources which are available with the Careers 360 for you students, जिससे कि आप लोग को इस काम में आसानी होगी कि आपकी प्रिपरेशन जो हो रही है उसमें हेल्प मिल जाए। तो इसलिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बारे में भी मैं बीच बीच में डिस्कस करूंगा। जो वेबसाइट पे आपके पास मटेरियल है अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उससे आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। So I'm starting with this question of complex numbers. It says that S is a set such that Z is a complex number and Z minus I by Z plus 2I belongs to real number. So Z is such a complex number such that Z minus I by Z plus 2I belongs to real number. Okay, its imaginary part is 0. So if we observe, we have one point, which is if we talk about Z minus I, suppose. So what we have is Z1 minus Z2 like that. So this I basically here is plotted on the y-axis, and this is 0, 1, or you can say it is I. So it is Z minus I by Z minus 2I. So minus 2I will be here. This is minus 2I, which is 0, minus 2. This is the origin. Now we have to select the complex number Z such that Z minus I by Z minus 2I belongs to real number. So what it means? It means that argument of Z minus I by Z plus 2I. This is a complex number, right? Z minus I by Z minus 2I is a complex number. So the argument of this should be either equal to 0 or pi. In that case, we get only real part. Okay. Argument is theta basically. So if we talk about cos theta plus I sin theta into R as a complex number, so sine theta should be equal to 0 for this to be purely real. And sine theta equal to 0 means theta could be 0 or pi. These two possibilities are there. So after seeing these possibilities, we can say that Z complex number should be where it should be. So it must be, if we take the complex number between I and minus 2I, suppose here we take. So this vector Z plus 2I and this vector Z minus I. What is the angle between them? Pi. So we can take Z on this line from this to this. Now if you take Z above I or below minus 2I, if you take Z here,
So z minus I and z plus 2i, that is z minus minus 2i, the angle between them will be 0. And similarly, if you take below minus 2i, it will be 0. So we can get the angle 0 or pi if this z actually lies on this line, which is joining I and minus 2i. Here in between it will be pi, here it will be 0, here it will be 0, the angle between the two vectors. Because z minus I and z minus minus 2i are basically two vectors, complex numbers like a vectors, and the angle between them are either 0 or pi. So we can say that from the options, like S contains exactly two elements, this is not correct. S contains only one element, that is also not correct. S is a circle in the complex plane, that is also not correct. S is a straight line in the complex plane, that is correct. And which straight line is this? This is the imaginary axis. So the locus of Z is imaginary axis, which is a straight line. Now let us come to the next question. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, such that argument of Z1 minus Z2 is pi by 4. Okay. And Z1, Z2 satisfy the equation Z minus 3 mod is equal to real part of Z. Then the imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to. So what we do, we suppose let Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2. Now argument of Z1 minus Z2 if you find, so A1 minus A2 plus iota B1 minus B2, argument of this is equal to pi by 4. What is the argument? Generally we take it tan inverse of y component by x component, imaginary component by real component, real part. So this is pi by 4, which means B1 minus B2 by A1 minus A2 is equal to tan pi by 4. And tan pi by 4 is equal to 1. So what we write it? B1 minus B2 is equal to A1 minus A2. This is what we can say. So this is one relation between B1, B2, A1, A2. What else is given there? Z1, Z2 satisfy the equation mod of Z minus 3 is equal to real part of Z. So this equation is being satisfied by Z1 also, by Z2 also. So mod of Z minus 3 is equal to real part of Z is being satisfied by Z1 as well as Z2. So Z1 is A1 plus IB1. So we take A1 plus IB1 minus 3 mod is equal to A1, that is real part of Z. So here we get A1 minus 3 plus iota B1 mod is equal to A1. So this implies root over A1 minus 3 square plus B1 square is equal to A1 square. And if we writing A1 square, then we can basically squaring both the sides. So this root we can remove. So what we are getting is this. This is the second equation. As Z1 is satisfying this one, Z2 is also satisfying this one.
So we can take A2 plus IB2 minus 3 mod is equal to A2. So what will that give? That will give A2 minus 3 whole square plus B2 square is equal to A2 square. This is the third equation. Now, what we do basically, let us see the question. It is saying the imaginary part of Z1 plus Z. So what is imaginary part of Z1 plus Z2? It is equal to B1 plus B2. That is what we have to find out. So if we subtract these two equations, 2 minus 3, so it will become A1 minus 3 whole square minus A2 minus 3 whole square plus B1 square minus B2 square is equal to A1 square minus A2 square. तो ये होगा. अब हम यहाँ पे इसको ओपन अगर करते हैं तो A1 माइनस 3 माइनस A2 प्लस 3, तो ये A1 माइनस A2 दे देगा. A माइनस बी का अगर आइडेंटिटी लगा रहे हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो A माइनस बी ये होगा और A प्लस बी क्या होगा? A1 प्लस A2 माइनस 6 हो जाएगा. ये जो दूसरा है B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? B1 माइनस B2 इंटू B1 प्लस B2. वैसे ही जो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है उसको A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2 लिखा जा सकता है. तो ये ऐसा लिख दिया. अब ये इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पर जो एक रिजल्ट आया था हमारे पास कि B1 माइनस B2 जो है A1 माइनस A2 के बराबर है. तो यूजिंग दिस, यूजिंग वन, वी कैन से ये A1 माइनस A2, ये B1 माइनस B2 और ये A1 माइनस A2 ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो B1 माइनस B2 की वैल्यू है वही A1 माइनस A2 की भी वैल्यू है. तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन वी कैन कैंसिल देम. तो हमारे पास बचेगा क्या? A1 प्लस A2 माइनस 6 और बच रहा है प्लस B1 प्लस B2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2. ये बच रहा है. तो अगर हम यहाँ पर A1 प्लस A2 को कैंसिल करते हैं तो B1 प्लस B2 क्या हो जाएगा? इक्वल टू 6 हो जाएगा. एंड इफ यू रिमेंबर हमें यही निकालना है, B1 प्लस B2 ही निकालना है. सो B1 प्लस B2 is 6. Then the imaginary part of Z1 plus Z2 is 6, which is your answer. You can say imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to 6. Okay. Now let us discuss little bit about the resources which are available in the on the site. So this I have already introduced that we are doing complex numbers and quadratic equations. And my name is Subuh Nadeem. I am a senior math faculty. And this is a live crash course for JEE Mains. So now we are talking about ebooks listing. तो किस तरह की ebooks आप लोग के लिए अवेलेबल हैं डाउनलोड करने के लिए, उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है. और इस लिंक को डिस्क्रिप्शन पे भी आप देखोगे और वहां से क्लिक करके आप उस पूरी लिस्ट को देख सकते हो जिसमें ई बुक्स अवेलेबल हैं और उनको डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री. एंड जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है कि JEE Main 2025 चैप्टर वाइज वेटेज. तो Careers 360 has released the JEE Main 2025 weightage for aspirants. Candidates appearing for the exam can refer to the JEE Main chapter wise weightage PDF to learn about weightage and syllabus of JEE Main exam. तो वेटेज और सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग जो है इस बुक को देख सकते हैं और इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रिपरेशन का डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है. हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट. उसी तरीके से ये दूसरा है JEE Main एग्जाम्स हाई स्कोरिंग चैप्टर्स एंड टॉपिक्स
which says just study 40% syllabus and score up to 100% marks. So ये भी आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स और उनमें हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने नैरो कर दिया है 40% ऑफ द सिलेबस पे। और उन 40% को अगर आप स्टडी कर लेते हो तो 100% तक के मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये भी आपके डायरेक्शन को हेल्प करेगा, प्रिपरेशन के डायरेक्शन को हेल्प करेगा। नाउ लेट अस कम टू द part where we were discussing about questions. So this question we have solved. Let us come to the next question. So the sum of 162th power of the roots of the equation x cube minus 2x square plus 2x minus 1 equal to 0 is. So it will be x cube minus 1 and then minus 2x square plus 2x is equal to 0. This you can write as x minus 1, this expression, into x square plus x plus 1. And rest 2 you can take 2x common and it will be x minus 1 is equal to 0. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो टर्म्स हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसको फैक्टराइज कर दे रहे हैं। तो x माइनस 1 दोनों से कॉमन आ गया, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमें जो रूट्स मिल रहे हैं, एक रूट तो हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 1, एक रूट क्या मिला, x इज इक्वल टू 1। और इस क्वाड्रेटिक से क्या रूट मिलेगा, माइनस बी विच इज 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 2a दैट विल बी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। और याद होगा कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, इफ यू रिमेंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कह सकते हैं कि ये माइनस ओमेगा है और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम माइनस लगाएंगे तो फिर ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। तो ये तीनों, वन तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, माइनस ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का निगेटिव है, ओमेगा स्क्वायर भी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का निगेटिव है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए 162th पावर। तो 1 टू द पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा टू द पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 162। तो 1 टू द पावर 162 1 हो जाएगा, माइनस का इवन पावर होता है तो प्लस ही होता है, तो ओमेगा टू द पावर 162 हो जाएगा। और ये ओमेगा टू द पावर 2 टू 4 एंड देन 6 टू 12 देन 1 कैरी 324 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर ओमेगा की जो पावर है वो 3 के मल्टीपल में है तो ओमेगा टू द पावर 3 के 1 होता है। और ये जो 162 है इट इज डिविजिबल बाई 3, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और 324 भी कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे भी 9 है, सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे भी 9 है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये पावर 3 का मल्टीपल में होगा पावर, तो 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 3 के बराबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ओके, द वैल्यू ऑफ 1 + sin 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 अपॉन 1 + sin 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 एंड होल क्यूब इज। तो यहाँ पर हमारे पास एक काम कर लेते हैं हम लोग। ये जो वन ऊपर में लिखा हुआ है ना, इसको हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर 2π/9 प्लस साइन स्क्वायर 2π/9। तो ये वन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है। और जो दूसरा टर्म है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9। नीचे वाले वन को कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे का वन जैसे है वैसे ही रहने दे रहे हैं। तो 1 + sin 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 एंड होल टू द पावर 3, ये हमें मिल रहा है। तो यहां से फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस कॉस स्क्वायर 2π/9 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो है साइन स्क्वायर 2π/9, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 2π/9, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और ये हो जाएगा प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9, ठीक है, अपॉन 1 + sin 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 एंड होल टू द पावर 3। अब यहां पर अगर हम कॉस स्क्वायर 2π/9 माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 2π/9 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से समझें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं, राइट। तो इसको ध्यान से देखना आप लोग को। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको जो है ये वाला जो पार्ट है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं। तो कॉस 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9 इंटू कॉस 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बाकी जो है साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9, उसको वैसे ही रहने देते हैं। सो एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये है कॉस 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9। तो इसमें से क्या करते हैं, आयोटा कॉस 2π/9 से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें से ये करते हैं कि साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9, ऐसा लिख सकते हैं। और इससे आयोटा हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि आयोटा कॉस 2π/9 आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, अपॉन 1 + sin 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9, ये आ रहा है। अब ऊपर में एक टर्म हम कॉमन ले सकते हैं एंड दैट टर्म इज, हाँ, दैट टर्म इज बेसिकली कॉस 2π/9, और इसका क्यूब भी है, ये मत भूलना, कॉस 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9। ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, कॉस 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9 और प्लस आयोटा बचता है, डिवाइडेड बाई 1 + sin 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 और इसका होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब हम ये कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कॉस 2π/9 प्लस माइनस आयोटा साइन 2π/9, ये लिख लिया। और ये जो दूसरा टर्म हमारे पास है इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो अगर हम आयोटा इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को
अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, वहां पे भी आप लोग इसको आराम आराम से देख के समझ सकते हो। और अभी भी समझने की पूरी कोशिश करो, जितना भी समझ में आए दैट इज इनफ। आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा कॉमन ले लिया है, प्लस, और जो साइन 2 पाई बाई 9 है वो वैसे ही लिखेंगे, साइन 2 पाई बाई 9, उसका भी आयोटा कॉमन ले लिया है। कॉस 2 पाई बाई 9 में आयोटा नहीं था, तो इसमें आयोटा के लिए हमें माइनस आयोटा स्क्वायर लिखना था, तो आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस आयोटा बचेगा, तो माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9 हो जाएगा। और नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 9, और इसका होल क्यूब। अब एक चीज आप लोग को समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स, कि ये जो टर्म है और ये टर्म ये कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, आई क्यूब बाहर जाके, और ये कॉस 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 9 का क्यूब। और आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है माइनस आई, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस आई। और डी मॉर्गन थ्योरम अगर हम लगाते हैं, बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, तो डी मॉर्गन थ्योरम हमें पता है, उसको अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, या पहले 2 पाई बाई 9 इंटू 3 मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस आई साइन 2 पाई बाई 9 इंटू 3, ये हो जाएगा, पावर जो है एंगल से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आई, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा माइनस आई साइन 2 पाई बाई 3। कॉस 2 पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस 120 डिग्री, तो यहाँ हो गया माइनस आई, और कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, -1/2। और ये जो है माइनस आई साइन 120 डिग्री, सो माइनस आई साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2, तो ये हो गया। अब हम आई को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये I/2 हो जाएगा, और ये I/2 हो रहा है, और ये हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो इसके बराबर आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। तो इसको लिख देते हैं -1/2, क्योंकि बाहर में जो कॉमन लिया गया है वो 1/2 या -1/2 है, तो हम -1/2 बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा √3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो -1/2 √3 माइनस आयोटा जो है हमारा आंसर होना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -½ इंटू √3 माइनस आई, विच इज आंसर इज ए। ओके, ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी अभी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग रिसोर्सेस के ऊपर अगेन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इस लिंक के थ्रू आप लोग उस लिस्ट तक पहुंच सकते हो जहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद ये एक इंट्रोडक्शन है ई बुक्स के बारे में, जैसे कुछ ई बुक्स का भी हमने डिस्कस भी किया है, उसके अलावा भी कुछ ई बुक्स हैं, जैसे जेई मेन 2025 चैप्टर वाइज वेटेज, इसका लिंक जो है ये है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जेई मेन एग्जाम्स हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, इसका लिंक ये है, ये भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद जेई मेन प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, तो पिछले 10 साल में जितने भी जेई मेंस के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे किसी शिफ्ट में हुए हों, किसी सेशन में हुए हों, उन सब का एक जगह आपको क्वेश्चंस मिलेगा विद सॉल्यूशन, और उसकी लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है।
और जेई मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो बेसिकली फार्मूला हमें रिवाइज करने में काफी हेल्प करता है। जब हम कम टाइम में चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो हम फार्मूला एक बार जरूर देखते हैं। तो एक जगह आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर लिंक से। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अभी तक हमने चार क्वेश्चंस देख लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इक्वेशंस भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस वन माइनस टू लॉग थ्री प्लस टू टू द पावर x टू द बेस टू प्लस टू लॉग टेन माइनस टू टू द पावर माइनस x टू द बेस फोर इज इक्वल टू जीरो इज। तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वन माइनस टू लॉग थ्री प्लस टू टू द पावर x टू द बेस टू, और ये जो फोर है ये क्या हो गया, टू स्क्वायर हो गया, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये बेस टू हो जाएगा। टेन माइनस टू टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और ये टू कैंसिल कर देते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग थ्री प्लस टू टू द पावर एक्स टू द बेस टू, ये मिल रहा है। और यहाँ पर टू टू द पावर माइनस एक्स को अगर वन बाई टू टू द पावर एक्स लिख दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, लॉग ऑफ टेन माइनस वन बाई टू टू द पावर एक्स टू द बेस, ठीक है, ऐसा ले ले रहे हैं। एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग थ्री प्लस टू टू द पावर एक्स टू द बेस टू, और यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग टेन इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस वन बाई टू टू द पावर एक्स टू द बेस टू। तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हम एक काम ये कर सकते हैं, जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के अंदर दो दो एक्सप्रेशन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको अलग अलग करके लॉग लेके सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा टेन इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस वन टू द बेस टू, और ये हो जाएगा माइनस लॉग टू टू द पावर एक्स टू द बेस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो ये आ गया एक्स प्लस वन, और ये हो गया माइनस टू लॉग थ्री प्लस टू टू द पावर एक्स टू द बेस टू, और ये हो गया log टेन इंटू टू टू दावर एक्स माइनस वन टू द बेस टू, ये हो गया। और यहां पर जो पावर है x वो कोफिशिएंट में अगर ले लेते हैं तो माइनस एक्स log टू टू द बेस टू हो जाएगा। log टू टू द बेस टू क्या होता है, वन होता है। सो दिस इज फाइनली इक्वल टू जीरो। अब यहां पर x कैंसिल हो गया, तो ये क्या दे रहा है, वन, और इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू टू लॉग बेस टू थ्री प्लस टू टू दावर एक्स माइनस लॉग बेस टू टेन इंटू टू टू दावर एक्स माइनस वन। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो टू है इसको हम लोग क्या करें, पावर में ले लेते हैं। यहाँ पर अगर लॉग के अंदर लेंगे तो पावर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू लॉग टू द बेस टू, और ये हो जाएगा थ्री प्लस टू टू दावर एक्स का स्क्वायर अपॉन, ये डिवीजन में ले आते हैं, टेन इंटू टू टू दावर एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा। लॉग अगर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, टू टू दावर वन विच इज एक्चुअली टू, तो टू टू दावर वन टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा थ्री प्लस टू टू दावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टेन इंटू टू टू दावर एक्स माइनस वन। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 20 × 2 टू द पावर x - 2 हो जाएगा। और यहाँ पे a+b होल स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाते हैं तो a² 9 हो जाएगा, b² 2 टू द पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, +2ab करेंगे 6 × 2 टू द पावर x। अब 2 टू द पावर x को अगर हम t ले लेते हैं, लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 20t - 2 इज इक्वल टू 9 +t² +60। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज कर दिया हमने। तो अब यहां से t² और 60 - 20t - 14t हो जाएगा। सो इट विल बी t² - 14t, और 9 + 2 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां से अब हम लोग इसका t की वैल्यू अगर निकालते हैं तो -b दैट इज +14 ± √b² दैट इज 196 -4ac दैट विल बी 44 अपॉन 2a दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 7 ± 196 -44, तो ये क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा। और 152 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो उसको लिख सकते हैं 4 × 152 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 3 12 4 8 32, ये लिख सकते हैं 152 को। 8 4 32 होगा, 3 कैरी 4 3 12 152, ठीक है, अपॉन 2। अच्छा अपॉन 2 बस इसमें होगा क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 7 बना दिया हमने 2 से डिवाइड करके। सो दिस इज बाई 2 है। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू आ रही है 7 प्लस माइनस, एंड 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √38 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 टू द पावर x t था, तो अगर हम 2 टू द पावर x इसको डाल देते हैं तो 7 प्लस माइनस √38 हो जाएगा। इससे x की क्या वैल्यू आ रही है, log ऑफ 7 प्लस माइनस √38 टू द बेस 2। अब देखते हैं क्वेश्चन में x की वैल्यू ही पूछ रहा था, तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अभी सम निकालना है। रूट्स तो हमने निकाल दिए, 2 रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इन दोनों का सम क्या होगा। तो सम जो होगा वो होगा log ऑफ 7 प्लस √38 टू द बेस 2, और एक है 7 माइनस √38, सो log 7 माइनस √38 टू द बेस 2 हो जाएगा। अब अगेन log की प्रॉपर्टी हमें पता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 प्लस √38 और 7 माइनस √38, तो ये हो गया log टू द बेस 2। ये 7² माइनस √38², तो ये 49 माइनस 38 हो जाएगा। a² माइनस b² की आइडेंटिटी हम इस पे लगा रहे हैं, तो log 11 टू द बेस 2। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है log 11 टू द बेस 2, ये आ गया ऑप्शन बी। तो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें लॉग वगैरह भी इन्वॉल्व था, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व था ऑब्वियसली, जिससे हमें जिनके हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of all integral values of k, where k is not equal to 0, for which the equation, this equation in x has no real roots, is. So 2 by x minus 1 minus 1 by x minus 2 is equal to 2 by k, and this equation has no real roots. तो उस केस में k क्या हो सकता है, k की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक तो k नॉट इक्वल टू 0 तो दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, डिनोमिनेटर में है।
और x भी नॉट इक्वल टू 1 और 2 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x-1 और x-2 है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 × x-2 -1 × x-1, और इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 × x-1 × x-2। तो एक तो एलसीएम लिया और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, k मल्टीप्लाइड विथ 2x - x, x हो जाएगा, -4 + 1 -3 हो जाएगा। x-3 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 × x-1 × x-2 करते हैं, तो x² - 3x + 2 हो जाएगा। और इसके बाद इसको लिख सकते हैं k × x-3। तो k को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, kx - 3k इज इक्वल टू 2x² - 6x + 4 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, 2x² -6x और -kx करेंगे तो 6 + k × x हो जाएगा, +4 + 3k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो निगेटिव होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो वो जो है निगेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा 6 + k का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, -4 to 8 × 4 + 3k इज लेस देन 0। तो ये हो गया 36 + k² + 12k -32 -24k इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा k² -24k + 12k क्या होगा, -12k, -32 + 36 क्या होगा, +4 हो जाएगा, इज लेस देन 0। तो k² -12k +4 इज लेस देन 0। ठीक है। अब इससे इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, अगर ये इक्वेशन होता, k² -12k +4 इक्वल टू 0 होता, तो k क्या होता, -b ± √b² - 4ac अगर करेंगे तो 144 -16 हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 6 ± और √128 क्या होता है, 2 × 2 = 2 × 4, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64, देन 1 2⁻7 होता है। तो बाहर जो निकल के आएगा वो 2³ आ जाएगा 8, और √2 यहाँ रह जाएगा बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 6 ± 4 √। तो जो k की वैल्यू आएगी अगर ये इक्वेशन होता, तो ये वैल्यू आती। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन इक्वेशन है। तो एक वैल्यू है 6 - 4 √2, एक वैल्यू है 6 + 4 √2। और जो ग्राफ होगा इसका कुछ ऐसा होगा कि हमें अगर लेस देन 0 चाहिए तो वो इन दोनों के बीच में होगा। तो k बिलोंग्स टू 6 - 4 √2, 6 + 4 √2, ये इस इंटरवल में k लाई करेगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा था सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। ठीक है। तो k की जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, जो इंटीजर्स हैं, उनका जो सम है वो क्या होगा। तो 6 - 4 √2 की वैल्यू लगभग क्या होती है, 6 - 4 × 1.4 अगर ले लें तो 6 - 5.6 विच इज इक्वल टू 0.4 अप्रोक्सीमेटली। तो ये लोएस्ट वैल्यू हो गई। हाईएस्ट वैल्यू 6 + 4 √2 होगी। तो 6 + 4 √2 विल बी 6 + 5.6, दैट will 11.6 अप्रोक्सीमेटली। तो इस दो इंटरवल के बीच 0.4 और 11.6 के बीच कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, ये सारी इन दोनों के बीच की इंटीग्रल वैल्यूज है। अब उनका सम चाहिए, तो सम के लिए तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है n into n+1/2, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका सम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 11 into 11+1/2, which will be 11 into 12/2, which is 11 into 6, which is equal to 66। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर 66 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले अगेन रिसोर्सेज को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, आगे क्या है वहां पे। लेट अस सी। तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर दिया, ये सारे अवेलेबल्स हैं आपके लिए। उसके बाद करियर 360 की तरफ से एक फीडबैक फॉर्म है, जिसका लिंक यहाँ पे है, जो सेम लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी है। तो गूगल फॉर्म होगा, उसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हो और उसको फिर हम लोग एनालाइज करेंगे एंड दैट विल इम्प्रूव अवर सर्विस। तो सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को जरूर भरना, और गूगल फॉर्म है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है भरना, बस ओपन करना है, नाम वगैरह लिखना है और उसके बाद उस फॉर्म को फिल कर देना। तो फीडबैक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू। और वहां पे फीडबैक आप कोई भी स्टडी मटेरियल का भी दे सकते हो, और वीडियो लेक्चर्स जो हो रहा है उसका भी आप फीडबैक दे सकते हो। सो जो भी रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज वीडियो, ऑडियो और रिटर्न, सो इन सब का आप फीडबैक वहां पे दे सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So consider the quadratic equation c minus 5x square minus 2cx plus c minus 4 is equal to 0, where c is not equal to 5. Let s be the set of all integral values of c for which one root of the equation lies in the interval 0, 2 and its other root lies in the interval 2, 3. Then the number of elements in S is। ठीक है, तो हमें सी की इंटीग्रल वैल्यूज पता करनी है कि क्या हो सकती हैं और कितनी होंगी इस तरह की वैल्यूज इस सेट एस में। उसको जानने के लिए हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि एक रूट 0, 2 में लाई कर रहा है और एक रूट 2, 3। तो ऐसा कुछ होगा कि ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है। तो एक रूट 0, 2 में, एक 2, 3 में है। या ऐसा भी हो सकता है कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो, ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस केस में अगर हम इसको देखते हैं तो एक चीज दोनों ही ग्राफ में हमें क्लियर दिख रही है कि F0 into F2 का जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि एक को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा निगेटिव होगा। यहाँ पे पहले को निगेटिव लेंगे तो दूसरा पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से F2 into F3 भी निगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर भी ऑपोजिट साइन है F2 का और F3 का, चाहे हम इस ग्राफ में देखें या इस ग्राफ में देखें। और जो इक्वेशन है उसमें अगर हम ये कंडीशंस पुट करते हैं तो फर्स्ट वन में, तो F0 मतलब x की जगह 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये C-4 बचेगा, ओनली यू विल गेट C-4। F2 अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा C-5 into 4 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4C प्लस C-4 इज लेस देन 0। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, C-4
4c और -4c कैंसिल हो रहे हैं, और c-4 और -20 -24 हो जाएगा। इट इज लेस देन 0। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि c इज बिटवीन 4 एंड 24। तो ये पहले कंडीशन से जो रिजल्ट आ रही है सी पे, वो ये आ रही है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, F2 इंटू F3। F2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, ये जो निकाला था हमने, ये F2 था। तो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, C-24। और F3 निकालने के लिए x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 9 इंटू C-5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6c प्लस C-4 इज लेस देन 0। ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको C-24, 9c - 6c क्या हो गया, 3c। 3c प्लस c विल बी 4c। ठीक है। -5 इंटू 9 -45 हो जाएगा, -4 -49 हो जाएगा, इज लेस देन 0 है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि c जो है 24 और 49/4 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, तो इससे तो c पे जो कंडीशन आ रही है, हम्म, अच्छा नहीं, 49/4 छोटा होता है ना, और 24 बड़ा होता है। मैंने ये उल्टा लिख दिया। 49/4 इज अप्रोक्सीमेटली 12, दैट इज 12.25 हो जाएगा एग्जैक्टली 49/4। तो 49/4 से सी बड़ा होगा और 24 से छोटा होगा, ये होगा। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों कंडीशन को हम अगर नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, 1 सेकेंड। सो स्लाइड थोड़ी कम हो गई जितना रिक्वायर्ड था उससे। कोई बात नहीं, मैं इसमें और स्लाइड ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो एज वी सी है कि हमारे पास सी जो आ रहा है वो 4 और 24 के बीच में है, और 49/4 और 24 के बीच में है। तो नंबर लाइन पे ये रीजन देख लेते हैं क्या होगा। एक हो गया 4 to 24, 4 है, ये 24 है। और एक हो गया 49/4 to 24, 49/4 है ये, नॉट 49/2। तो ये रीजन है। अब इन दोनों रीजन का जो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, सी बिलोंगिंग टू 49/4, 24, जो कॉमन रीजन आ रहा है। और वी से 414, 428, 12.25 to 24, ये आ रहा है सी का रीजन। अब हमसे पूछा जा रहा था कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सेट एस में, अगर हम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी की बात करें। तो एक है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर वुड बी 11 एलिमेंट्स। दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है।
एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन ओवर करेंगे। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। सो इट सेज इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers, have a common root, then a is to b is to c is equal to। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। तो अगर इन दोनों का एक कॉमन रूट है तो दूसरा रूट अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर हम फर्स्ट वन को देखें और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 - 12 - 8 आ जाएगा, विच इज निगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स नहीं है। और जब भी इमेजिनरी रूट्स प्रेजेंट रहते हैं, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो जब भी हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो अगर हम इस दूसरी इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की, और इसको कहें कि इसका एक रूट तो कॉमन है ऊपर वाले से, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। और अगर एक रूट कॉमन है, सपोज एक है ए प्लस आई बी, तो दूसरा ए माइनस आई बी होगा। और अगर यहां पर ए प्लस आई बी वाला कॉमन है, तो यहां पर भी ए माइनस आई बी उसका कॉन्जुगेट रूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन होंगे। और जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्जुगेट होते हैं रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर वो इमेजिनरी है तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 1:2:3। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, फिर एक्स का, और 3 जो कांस्टेंट है 1:2:3, वो a इज टू बी इज टू सी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम इस सेशन को ओवर कर लेते हैं, एंड जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू द लास्ट स्लाइड। तो ये फीडबैक फॉर्म के बारे में तो अभी मैंने बता दिया था। नाउ for any queries, you can reach out to us on live classes at entrance360.com। इस मेल पे आप अपनी queries भेज सकते हो, and we'll try to resolve your queries। And thank you all for joining the session. All the best.